اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آج ایک ایسا ٹاپک میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں جو ایک بہت ضروری ٹاپک ہے، اور ہمیں وہ ہر حال میں کرنا چاہیے اپنی صحت کے لیے۔ دیکھیں، بچپن میں بزرگ کہانیاں سنایا کرتے تھے کہ کوئی شخص ہے اور وہ جنگل میں جا رہا اور اس کو آب حیات مل گیا اور پھر اس نے ایک بڑی لمبی عمر پائی۔ ہم بھی سمجھتے تھے کہ شاید یہ سچ ہے۔ کبھی کبھی ہم جب جاتے تھے کوئی ٹور پر یا کوئی ایسی ویسی، تو ہم جا کر ڈھونڈتے تھے کہ کہیں سے آب حیات مل جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ باتیں بچپن کی حد تک ٹھیک لگتی ہیں، انسان بڑا ہو جائے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ ایسا سچ کوئی چیز نہیں ہے آب حیات کی۔ اچھا، میں آج آپ کو جو ٹاپک ڈسکس کرنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کو میں یہ بتاؤں کہ یہ واقعی میں ایک آب حیات کی حیثیت رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہ کرتے ہیں تو آپ کی لانگیٹیوٹی آف لائف، آپ کی زندگی طویل ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اچھا لگنا چاہتے ہیں، اگر آپ بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ اپنے جسم میں طاقت کو محسوس کرنا چاہتے ہیں، تو ان تمام باتوں کا حل ہے ورزش، ایکسرسائز، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاکستان میں تو بہت کم ایکسرسائز کی جاتی ہے۔ موسٹلی ہمارے گھروں میں جو خواتین ہیں وہ بیچاری یہ سمجھتی رہتی ہیں کہ ہم گھر کے کام کر رہے ہیں تو چلیں یہ میری ایکسرسائز ہے۔ مرد حضرات، نوجوان بیچارے جو اپنے اسکولوں یا کالجز یا یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، اور مرد حضرات جو جاب وغیرہ پہ جاتے ہیں، وہ سمجھ ہوتے ہیں کہ ہم جاب کر رہے ہیں تو یہ ہماری ورزش ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ورزش وہ فعل ہے جس کے لیے آپ کو اپنی زندگی کے روزانہ 10 یا 15 یا 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ نکالنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور وہ آپ کو کچھ ایکسرسائزز کرنی ہوں گی تاکہ آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے ورزش کی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ورزش کرتی کیا ہے کہ یہ ہمارے جسم میں پروٹین اور کچھ کیمیکلز وغیرہ ریلیز ہوتے ہیں جس سے ہمارے ذہن کی اور جس سے ہمارے جسم کی اوورآل بہتری ہوتی ہے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ساخت بہتر ہوتی ہے۔ ان رسپانس وہ ہمارے جسم میں، ہمارا جسم اور ہماری ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ اور زندگی کے آخری جو وقت ہوتا ہے، جو آفٹر 40 ایئرز ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک میکینزم رکھا ہے جس میں ہماری ہڈیاں وہ خود بخود بھرنا شروع ہو جاتی ہیں یا گلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ خواتین میں یہ چیز زیادہ ہوتی ہے، مردوں میں کم ہوتی ہے، لیکن ہوتی ہے۔ تو اس وقت وہ جو آپ نے ورزش اپنے بچپن میں کی ہوتی ہے یا ینگ ہوڈ میں کی ہوتی ہے، تو وہ اس کی وجہ سے آپ کا یہ پروسیس سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے، یعنی آپ کی ہڈیاں اور آپ کا جسم توڑ پھوڑ کا شکار جلدی نہیں ہوتا۔ تو مطلب وہی ہو گیا کہ آپ کی عمر طویل ہو گئی، اور اس عمر طویل ہونے کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے آب حیات پا لیا، ٹھیک ہے۔ ورزش کے فوائد کیا ہیں؟ ورزش سے آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ وزن انسان کا کم ہو جائے تو وہ کئی قسم کی بیماریوں سے، بلڈ پریشر، ڈائبٹیز ٹائپ 2، کیلیسٹرول، جسم میں چکنائی، بلڈ میں چکنائی کی مقدار کا زیادہ ہو جانا، اور بلڈ پریشر کی وجہ سے فالج وغیرہ کا ہو جانا، ان تمام بیماریوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ورزش کی وجہ سے۔ اچھا، ورزش کی وجہ سے ایک انسان کے ایک کچھ بیماریوں کا مجموعہ ہے جس کو کہا جاتا ہے میٹابولک سنڈروم۔ میٹابولک سنڈروم کون کون سی چیزوں کو انڈیکیٹ کرتا ہے؟ میٹابولک سنڈروم میں دل کی رگوں کے مسائل، جو کرونری آرٹریز آف ہارٹ ہوتی ہیں، اس کے مسائل، شوگر، فالج وغیرہ، یہ تمام میٹابولک سنڈروم میں آتے ہیں۔ تو میٹابولک سنڈروم ورزش کی وجہ سے، ایکسرسائز کی وجہ سے اس کا رسک ریڈیوس ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات آپ جب ریگولر ایکسرسائز کرتے ہیں تو اس کا رسک ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ہائی بلڈ پریشر سے بچ سکتے ہیں۔ آپ ڈپریشن کا اگر خدا نخواستہ شکار ہیں تو ورزش کی وجہ سے آپ ڈپریشن کے اوپر
कवर अप कर सकते हैं। एंजाइटी बाज़ लोगों में होती है, घबरा जाते हैं, टेंशन आ जाती है, एंजाइटी जो होती है उससे आप बच सकते हैं। और एक मैं आपको और इम्पॉर्टेंट बात बताऊं, कई किस्म के कैंसर से आप बच सकते हैं वर्जिश की वजह से, ठीक है। एक जोड़ों में गठिया की बीमारी होती है और उसको हम इंग्लिश में हम डॉक्टर्स कहते हैं आर्थराइटिस। आर्थराइटिस से बचा जा सकता है वर्जिश की वजह से, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिए, बाज़ लोगों में मूड डिस्टर्बेंसेस होते हैं, उन्हें गुस्सा ज़्यादा आता है, थकावट होती है, गुस्सा ज़्यादा आता है, मार धाड़ में लगे रहते हैं, ठीक है। वर्जिश की वजह से आप अपने मूड के प्रॉब्लम्स को कवर अप कर सकते हैं। ड्यू टू आप जब वर्जिश करते हैं, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, तो आपके जिस्म के अंदर एक चीज़ रिलीज़ होती है, उसको कहते हैं एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स जब रिलीज़ होते हैं तो आपकी मूड की एलिवेशन हो जाती है, आपका वो डिप्रेस्ड मूड या आपके जो मूड के प्रॉब्लम हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। बाज़ लोगों में नींद के इश्यूज होते हैं, उन्हें नींद नहीं आती, ठीक है। और फिर मैं वही बात करूंगा कि वो बेचारे चले जाते हैं और हम डॉक्टर्स के पास आते हैं, और हम डॉक्टर्स जो हैं, अक्सर मैंने अपने कुछ कोलीग्स को भी देखा है, एंड दे राइट इन नंबर ऑफ, वो उनको हज़ारों किस्म की नींद आवर अद्वियात लिख कर दे देते हैं, जिससे वो बेचारे आदी हो जाते हैं। तो नींद लाने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका एक्सरसाइज है, वर्जिश है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। वर्जिश से मुतल्लिक़ ये मेरी दूसरी वीडियो है और मैं चाहूँगा कि इसमें कवर अप करूँ इस वीडियो में। अच्छा देखिए, वर्जिश जो है ये दो तरह की वर्जिश की जाती हैं, ठीक है। एक होती है एरोबिक एक्टिविटी और एक होती है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ठीक है। एरोबिक एक्टिविटी क्या है और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या है? अच्छा देखिए, एरोबिक एक्टिविटी वो होती है जिसमें आपके जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो इस हद तक एक्टिवेट होता है, या हम रिपीटेड या हम एक स्ट्रक्चर्ड एक ऐसा एक प्रोसीजर जिसको हम बार बार करते हैं, या स्ट्रक्चर्ड के एक ख़ास तरह का हमने एक्सरसाइजेस का एक मजमूआ बनाया होता है, ठीक है, वो हम बार बार करते हैं, तो हमारा जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है और हमारे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। तो उसमें हमारे जो मेटाबॉलिक सिस्टम है बॉडी का, वो ऑक्सीजन को यूज़ करता है और एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं एरोबिक एक्टिविटी, ठीक है। दो चीज़ें, दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना और साथ में मेटाबॉलिक सिस्टम का ऑक्सीजन को यूज़ करते हुए एनर्जी को प्रोवाइड करना, इसको आप कहते हैं एरोबिक एक्टिविटी, ठीक है। एरोबिक एक्टिविटी जो होती है, ये याद रखिए मेरी बात, कि ये 150 मिनट्स मॉडरेट एरोबिक एक्टिविटी की जाती है या 75 मिनट्स विगरस एक्टिविटी की जाती है इन ए वीक, हफ्ते में, या 150 मिनट जिसमें मॉडरेट एक्टिविटी आती है और 75 मिनट जिसके अंदर विगरस एक्टिविटी या तेज़ एक्सरसाइज आती है। ये एक्सरसाइजेस कौन सी आप करते हैं जिसको हम एरोबिक एक्सरसाइजेस में कंक्लूड करते हैं? ब्रिस्क वॉकिंग, तेज़ तेज़ चलना, स्विमिंग, ठीक है, या बाइकिंग, ठीक है। ये तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं इसको आप कहते हैं एरोबिक एक्टिविटी, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या होती है? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ये होती है जिसमें हम तमाम मसल्स को यूटिलाइज करते हैं और हम उनको हाई जो मशीन्स वगैरह यूज़ की जाती हैं उसमें हम करते हैं ट्वाइस ए वीक। हमारे तमाम मसल्स को पावर ट्रेनिंग की जाती है ट्वाइस ए वीक, के तमाम मसल्स जो हैं वो हमारे एक्टिविटी में आ जाएं। उसमें फिर डिफरेंट एक्सरसाइजेज आती हैं, बाइसेप्स होते हैं,
आपने यंग जनरेशन को देखा होगा, और वो जाते हैं, वो बाइसेप ट्रेनिंग करते हैं और वो ट्राइसेप ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक हमारे बच्चों का अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि उन मासूमों को कोई ट्रेनर नहीं होता, और वो जाते हैं और जाकर हैवी मसल ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। उसमें होता क्या है कि उनके मसल्स जो हैं वो इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि वो बेचारे एक हफ्ता तो ज़ोर लगा के कर लेते हैं और दूसरे हफ्ते वो बेचारे कहते हैं हम तो कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो जब भी ये मेरा यंग जनरेशन को एक पैगाम है कि बेटा, जब भी आप लोग एक्सरसाइजेस करें, मसल ट्रेनिंग करें, तो याद रखें एक दिन आप बाइसेप और ट्राइसेप कर लें, उससे अगले दिन आप अपने चेस्ट एक्सरसाइजेस कीजिए, ठीक है। उसमें आपने बाइसेप और ट्राइसेप को नहीं टच करना, क्यों? ताकि आपके मसल्स जो हैं वो पहले मसल्स का जो एग्जॉशन हुई है या उनको जो थकावट हुई है वो उतर जाए, और उसके बाद फिर आपने आगे दूसरी एक्सरसाइजेस करनी है। तो ये दो तरीके हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और एरोबिक एक्सरसाइजेस, ठीक है। देखें, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, और मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी दरख्वास्त है अपने तमाम पाकिस्तानियों से कि हमें एक्सरसाइज हर हाल में करनी है। इंसान एक्सरसाइज करता है तो वो बेहतर रहता है। मैं आपको सिर्फ इतना गाइडेंस देना चाहता हूँ कि मेरी एज 43 इयर्स है और मैं एक्सरसाइज करता हूँ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करता हूँ। बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब इंसान में बुढ़ापे के असरात बहुत हद तक कम हो जाते हैं, ठीक है। और एक्सरसाइज करने से एक तो आपकी दिल की धड़कन तेज़ होती है, तो जो आपके वेसल्स के अंदर चर्बी वगैरह पाई जाती है वो भी कम हो जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि हार्ट अटैक वगैरह या इनके चांसेस भी कम हो जाते हैं, ठीक है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तानी और मेरे पाकिस्तानी आवाम को हमेशा सेहत और सलामती में रखें। काइंडली मेरी वीडियोस को आगे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अपनी फैमिलीज़ को बताइए कि आप अच्छा खाएं, अच्छा पिएं और अपनी सेहत के ऊपर तवज्जो ज़रूर रखिए। ज़िंदगी अल्लाह ताला का एक तोहफ़ा है, और इसका शुक्र यही है कि आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।